जनाब, अब हम बात करते हैं मीडिया के पर्सपेक्टिव्स के हवाले से। पहले मैं आपको एक कोर आइडिया डेवलप करना चाहूँगा, ठीक है, मास मीडिया के हवाले से भी और आपके जो वो है पर्सपेक्टिव्स के हवाले से, प्लूरलिस्ट के हवाले से भी और मार्क्सिस्ट के हवाले से भी। हमारे पास एक्चुअल में तो 3 पर्सपेक्टिव्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन हम 2 पर्सपेक्टिव्स को बहुत डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। मतलब आप इसके अंदर बेटा प्लूरलिस्ट होते हैं हमारे पास और एक होते हैं मार्क्सिस्ट होते हैं। इधर देखो, समझो प्लूरलिज्म क्या कहता है और मार्क्सिज्म क्या कहता है। देखो, इसके अंदर फंक्शनलिज्म और मार्क्सिज्म वाला मामला नहीं चलता, इसमें प्लूरलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट का इशू चलता है। Marxists are having a bit of critical approach in terms of media, while the pluralists are having positive approach related to the media. सही है। प्लूरलिस्ट क्या है? एक आम आदमी की सोच क्या कहती है? मीडिया इज रन बाय एंड कंट्रोल्ड बाय द मैनेजर्स, ठीक है। मीडिया इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन जस्ट लाइक अदर बिजनेसेस, ठीक है। मीडिया दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी टू प्रमोट, they are promoting these basic ideas and they think this is the core idea and idea behind the media businesses. Actually, for pluralists, media is a form of business. Media is a form of business, just like other businesses like insurance, banking, education, healthcare. For some states, listen to me, for some states, health and education is a part of welfare state. For some institutions, after the marketization of education, education is also a business. Okay, so the idea rotates around the concept where we can say this thing. For pluralist, media is a business, economic organization without any particular ideological backings. Am I right? On the other hand, if we talk about Marxist, the media is an ideological institution. Media is an ideological. The core reason and core purpose to establish media, according to Marxists, is to promote the capitalist ideology within the society. Like inequality, they just want to, according to Marxists, the media want to promote this ideology that inequality is a natural phenomena. Inequality is a natural phenomena. Got it? So they want to promote these things. समझ रहे हो मेरी बात? So actual में for Marxists, media is a cultural institution. As a part, media is an ideological state apparatus which develops ideology in the favor of capitalism. Okay? So the whole idea of pluralist and Marxist perspective is media. For pluralists, media is an economic institution. For Marxists, media is an ideological institution. You need to understand this core difference. Listen to me. For pluralists, media could be owned by investors. They don't have any ideological backings or any ideological manifesto. While if we talk about Marxists, according to them, the media is owned by the capitalists and they have a core capitalist mindset and they want to promote the capitalist ideology. For Marxists, media is a capitalist institution. Media is a part of ideological state apparatus owned by the capitalists. तो बहुत सिंपल सी बात है ना. For Marxists, media is owned by the capitalists, so there is a control of capitalists within the organization. So there is a control of capitalists within the organization. But if we talk about pluralists, media could be owned by the economic investors, but day-to-day media operations used to run by the managers, and the content of the media is based on the audience demand. Managers just try to find out the audience demand. Managers used to try know about the audience demand and they just execute that particular thing. समझ रहे हो? यानी कि मैनेजर्स को क्या करना पड़ता है, उनको ऑडियंस डिमांड जाननी पड़ती है एंड वो उसके हिसाब से कंटेंट बनाते हैं.
For pluralists, the day-to-day operations, the media is a very big organization. For pluralists, media is not only about a very small company. Media is a very big institutions. Like if we talk about the media, cross media conglomerates like Big Six, for आपके जिसके अंदर न्यूज़ कॉर्पोरेशन आ जाता है, जिसको फॉक्स के सिस्टम कह सकते हैं. इसके अलावा हमारे पास यूनिवर्सल है, डिज्नी है, आपका वो है वार्नर मीडिया है, फिर आपका इसके अलावा वो हो सकता है डिज्नी हो गया, यूनिवर्सल हो गया, न्यूज़ कॉर्पोरेशन हो गया, वार्नर मीडिया हो गया, फिर आपका वो हो गया कौन से वाले पैरामाउंट हो गया, ठीक है, फिर आपका सोनी हो गया. ये आपके सारे इंस्टीट्यूशन है, बिग सिक्स हैं. दीज आर कॉल्ड क्रॉस मीडिया कॉन्ग्लोमरेट्स बिकॉज दे आर वेरी डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन. लाइक इफ यू टॉक अबाउट डिज्नी, दे आर हैविंग 14 थीम पार्क्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड. If we talk about the Universal, they are also having theme parks. If we talk about the Universal Group or Comcast Group, they are also running Xfinity, the US biggest internet service provider. So that's why we can say, and they are not only in the film business or news business, they are also in the media film distribution. They are also they are the part of resorts. They are part of you can say OTT platforms, over the top platforms like Hulu, Disney Plus, like you can say the Warner Media is also having OTT platforms, जिसको हम आपके Netflix जैसे platforms कह सकते हैं, ठीक है. तो it means we can say this. I said this thing. आपको अगर सर्दी लगे तो आप फिर चेंज कर लेना सीट में सर. अच्छा जी, इस कहानी को थोड़ा सा और समझते हैं. हु ओन्स मीडिया? भैया हमारे पास डिफरेंट तरह की मीडिया ओनरशिप होती है. नंबर वन इज़ ऑल अबाउट द स्टेट ओनरशिप, लाइक BBC, CNN, PTV. दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेट ओनरशिप. अनदर थिंग विच वी आर हैविंग प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट मीडिया ओनर्स, ठीक है. फॉर प्लूरलिस्ट, लिसन टू मी एवरीवन प्लीज. For pluralists, the core objective of private media owners is to earn profits. Am I right? They just want to earn profits. They want to make money out of it. They have huge investments and they want to get return out of it. Okay? But on the other hand, if we talk about Marxists, they assume that these private media owners are the capitalists and they have some ideological belongings, or you can say ideological backings about these things. Okay, they want to promote the capitalist ideology. They want to promote the capitalism through media. Yaad rakho, keep one thing in your mind. Media is one of the most powerful institutions within the society. They have a power to develop opinion, they have a power to build a government, they have a power to break the government. Because they are going to mold the public opinion. In democratic societies, the public is one of the most important part of the society. And the public is controlled by the media. Okay? समझ में आई बात? The public is controlled by the media because the opinion of the public is dependent on the media, the development of perception. If the media is going to show something very good, the people will think this is very good. If the media is going to develop something that this is a very bad thing for the society, the people will assume this is a very bad thing for the society. Okay, so as media is one of the most powerful institution which eventually lead towards if we are going for the same formula. Listen, अगर हम मीडिया को इतना पावरफुल इंस्टीट्यूशन समझ रहे हैं और डेमोक्रेसी भी है सोसाइटी में, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी है, तो एक तरह से मीडिया ओनर्स सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाएंगे सोसाइटी में, बिकॉज दे कैन डेवलप एनीवन्स द ओपिनियन इन द फेवर ऑफ एनीवन ऑफ द सोसाइटी. वो किसी भी XYZ को उठाएं और उसके हवाले से कैंपेन स्टार्ट कर दें, ऑटोमेटिकली वो बंदा प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है इस फॉर्मूले के तहत अगर हम चलें. So we can say the media owners can exploit anyone, can develop anyone, can break anyone. ठीक है, तो एक्चुअल में ये चीज़ भी पॉसिबल है. ठीक है, पर्टिकुलरली दुनिया के अंदर हुआ क्या? दुनिया के अंदर हुआ ये कि देयर आर सम वेरी फ्यू प्राइवेट मीडिया कंपनीज. उन्होंने एक्चुअल में क्या करना शुरू किया, उन्होंने वर्टिकल इंटीग्रेशन भी की और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन भी की. दे स्टार्ट बाइंग अदर कंपनीज. तो ऑटोमेटिकली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनका जो साइज था बिजनेस का वो बहुत एक्सपेंड होता चला गया. और एक टाइम है कि अब दुनिया का जो पूरा मेजर मीडिया बिजनेस है, दुनिया की सिर्फ 6 कंपनीज होल्ड करती हैं जिनको हम बिग 6 कहते हैं.
और उनमें से भी एक कंपनी जो है डिज्नी ने खरीद ली है, न्यूज़ कॉर्पोरेशन को जो है डिज्नी ने खरीद लिया है, जिस पर्टिकुलरली मार्वल रिलेटेड एंटिटीज़ हैं उनकी, ठीक है, सॉरी जो उसकी फॉक्स रिलेटेड एंटिटीज़ को खरीदा है, 21st सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी ने बाय कर लिया। इट मीन्स के वेरी फ्यू मीडिया इंडिविजुअल्स आर हैविंग वेरी गुड बिग पावर। अब आफ्टरवर्ड्स दे कैन एक्सप्लॉइट एनीवन, दे कैन डेवलप ओपिनियन इन द फेवर ऑफ कैपिटलिज्म। अब होता क्या है, अब ये इनइक्वालिटी बेस्ड सिस्टम है सोसाइटी के अंदर, जिसको हम कैपिटलिज्म कहते हैं, ठीक है, इनइक्वालिटी बेस्ड सिस्टम है। द पीपल विल अज्यूम दिस आइडिया दैट दिस इज अ नेचुरल फिनोमेना। लोगों को ये लगता है ये एक नेचुरल फिनोमेना है। जब लोगों को लगता है ये एक नेचुरल फिनोमेना है तो कोई बंदा उसके खिलाफ आवाज़ ही बुलंद नहीं करेगा, वो बंदा बोलेगा नहीं एवरीथिंग इज फाइन, एम आई राइट? And they used to marginalize the anti-capitalist ideas. According to Marxists, they used to marginalize the anti-capitalist ideas. That means ये नहीं कि कोई भी सोच जो कैपिटलिज्म को अपोज करेगी ये उसको साइडलाइन कर देंगे, उसका मीडिया ब्लैकआउट कर देंगे। अब ऑटोमेटिकली लोगों को क्या नजर आ रहा है, लोगों को एक मेटा नैरेटिव ही, एक सिंपल ट्रुथ नजर आ रहा है दैट दिस इज अ कोर आइडिया। लोगों को लग रहा है दिस इज द ओनली रियलिटी अवेलेबल इन द सोसाइटी। जब लोगों को ये लगेगा दिस इज द ओनली रियलिटी अवेलेबल इन द सोसाइटी तो ऑटोमेटिकली लोग भी उसी तरीके से एक्ट करेंगे। समझ आई बात? फिर लोग उसी यानी कि मीडिया के हाथ में एक तरह से वो कंट्रोल करना शुरू, मीडिया यूज्ड टू विल कंट्रोल देम, ठीक है। हमारा एक तरफ तो हो गया स्टेट मीडिया ओनरशिप, दूसरी तरफ हो गई हमारे पास प्राइवेट मीडिया ओनरशिप। ऑन द थर्ड हैंड वी आर हैविंग द डिजिटल मीडिया ओनरशिप्स। अब दुनिया में देखा ये जा रहा है कि भाई ये मार्क जुकरबर्ग या मार्क जिंगरबर्गर हो गया, हाँ सही है, या फिर आपके ये एलॉन मस्क भाई हो गए, ठीक है, या ये ट्विटर वाले लोग हो गए, ठीक है, एलॉन मस्क और ट्विटर वाले अंकल हो गए ना, अब तो सही है, यू कैन यूज दिस टर्म। यानी कि तुम सोचो वो बंदा टेस्ला के शेयर्स बेच के ट्विटर के शेयर्स बाय कर रहा है, सोचो तो ट्विटर का शेयर कैसे कितना खतरनाक होगा। वो टेस्ला जैसी कंपनी के शेयर बेच के ट्विटर को बाय करा है बिकॉज उसको पता है ही कैन अर्न मनी विद द हेल्प ऑफ पब्लिक ओपिनियन एंड द पब्लिक ओपिनियन ही कैन मेक और ब्रेक द पब्लिक ओपिनियन थ्रू ट्विटर। समझ आई बात? यानी कि उसने अभी जो रिसेंटली, आप इसकी एग्जांपल भी डाल सकते हो, जो बिटकॉइन के साथ किया था उसने कहा भाई टेस्ला जो है बिटकॉइन में परचेज करेगी, लोगों ने कहा ओ माय गॉड बेहतरीन, बिटकॉइन के प्राइस हाई हो गए। फिर उसने कहा नहीं यार हमें सही नहीं लगेगा, वी आर नॉट गोइंग फॉर इट, ख़त्म हो गई कहानी। समझ आई बात? तो अब क्या होता है, अब ये चीज़ सही है गलत है मैं इस बारे में नहीं बात कर रहा, सही है। अब डेफिनेट सी बात है गवर्नमेंट्स जो होती है ना वो ब्लैकमेल होती हैं। देखा अभी देखो यूएस में कितनी बड़ी मूवमेंट चल रही है कि एलॉन मस्क को रोका जाए कि ये ट्विटर बाय करने से, मूवमेंट चल रही है ना। क्यों? क्योंकि एलॉन मस्क ऑलरेडी उसके पास इकोनॉमिक पावर इतनी खतरनाक है, अगर उसके पास ओपिनियन की पावर भी आ जाएगी वो तो तबाही फेर देगा, सही है। और यूएस के जो लॉज हैं उसके मुताबिक ट्विटर इज़ अ प्राइवेट कंपनी, they can do anything, they can allow anyone। नॉर्मली जो केस चला था डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो उन्होंने उसका अकाउंट बैन किया था उसके ऊपर केस चला था, उन्होंने कहा कि भाई ट्विटर इज़ अ प्राइवेट कंपनी, दे आर अलाउड, लेट्स सपोज कहते हैं रेस्टोरेंट में लिखा हुआ था राइट्स ऑफ एंट्री आर रिजर्व, सही है, उनकी मर्जी आपको आने दें, बोले आप अच्छे नहीं लग रहे आप, वो आपको नहीं बोलेंगे आप घर जाओ, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्यों किया जाता है ये? इसीलिए किया जाता है कि भाई एलॉन मस्क क्यों कर रहा है, इसीलिए कर रहा है कि वो ओपिनियन डेवलपमेंट की पावर को गेन करना चाहता है। क्लियर होगी बात? अच्छा अब आ जाओ, अब मैं अगर प्लूरलिस्ट पर्सपेक्टिव की बात करूं तो भाई अगर वो ट्विटर खरीद भी ले एलॉन मस्क तो वो चलाने थोड़ी ना बैठ जाएगा कि वो कल सर्वर रूम में चला गया जागने के लिए क्या चल रहा है भाई, वैसे तो नहीं करेगा। डेफिनेट सी बात है, यहाँ पर प्लूरलिस्ट की बात ओके होती है। द मीडिया मैनेजर्स यूज टू रन द डे टू डे ऑपरेशन, दैट इज व्हाई वी यूज टू कॉल इट मैनेजेरियलिज्म, और उनको हम कहते हैं टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट। टेक्नोक्रेटिक मैनेजेरियल एलीट कहा जाता है। ये वो लोग हैं जो मीडिया के डे टू डे ऑपरेशंस को रन करेंगे। Owners just own this businesses and sometimes there are so many media owners like public limited company है, सही है। जब पब्लिक लिमिटेड कंपनी होगी तो उसके शेयर हज़ारों करोड़ों लोगों के पास होंगे, सही है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट टीम यूज टू रन द बिजनेस,
So the media managers are the most powerful individuals according to pluralists. According to this phenomena, this working, we can say this thing: the media owners or media managers are the most powerful individuals. But if you talk about the Marxist perspective, you can assume this thing that the vision used to adopt by the owners. यानी कि लेट सपोज अगर रूपर्ट मर्डॉक की बात कर रहे हैं न्यूज़ कॉर्पोरेशन के अंदर, तो उसने जो मैनेजर्स या एडिटर्स रखे हुए होंगे अपने न्यूज़ कॉर्पोरेशन के अंदर, वो एडिटर्स, वो तमाम लोग जो होंगे वो एक्चुअल के अंदर रूपर्ट मर्डॉक की लाइन को फॉलो करेंगे या अपनी लाइन को फॉलो करेंगे? रूपर्ट मर्डॉक की लाइन को फॉलो करेंगे। रूपर्ट मर्डॉक जो बोलेगा, लेट सपोज जब ओनर्स का इन्फ्लुएंस होता है टूवर्ड्स सेलेक्टिंग अ लाइन। सेलेक्टिंग अ लाइन का मतलब क्या होता है? कि लाइन का मतलब होता है किस मैनिफेस्टो को फॉलो करना है, किसका मैनिफेस्टो को फॉलो नहीं करना। ठीक है, सो दिस इज द कोर आइडिया बिहाइंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ pluralism and Marxism. Any confusion till here? Now we need to talk about the third form of media ownership, that is all about digital media owners. दुनिया में कहा जाता था कि पहले दौर के अंदर चंगेज़ खान था, अलेक्जेंडर दी ग्रेट था, इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगियां लगा दी दुनिया को फतह करने के लिए, सही है। बट नाउ यू कैन से दिस थिंग, द मार्क जुकरबर्ग इन्वेड द वर्ल्ड इन फ्यू ईयर्स, बिकॉज दुनिया में अब जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो जंगें, द न्यू फॉर्म ऑफ वॉर इज़ नॉट अबाउट अ कन्वेंशनल वॉरफेयर, दिस इज मोर अबाउट द वॉरफेयर टू गेन द पब्लिक ओपिनियन। लेट्स सपोज मैं मीडिया के थ्रू पब्लिक ओपिनियन गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा कर दूं, दो पब्लिक ओपिनियन क्रिएट हो जाए मुल्क के अंदर, सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगी। सिविल वॉर स्टार्ट क्यों हो जाएगी? इसकी वजह ये दो मुख्तलिफ पब्लिक ओपिनियन है, ख़त्म हो गई कहानी। I can do anything with the help of media. समझ में आई बात? तो if you own the media, you can manipulate the world, you can manipulate that truth, you can develop your truth. It means you are the new king of the world. And the new media forms and the owners of the new media are the new rulers of the world. Actually, they are not dependent on any state of the world. If the state is going to ban them, the people will protest against the state. And the ban on these institutions will consider as you are breaking the freedom of freedom of truth, freedom of speech. The state can be accused on this idea that you are invading the freedom of speech. This is one of the most important charter of the point of United Nations. कोई भी बंदा यूनाइटेड नेशंस के अंदर बोल सकता है भाई आपने जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच को बैन करने के लिए पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को बैन किया हुआ, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या हुआ, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम द होल फिनोमेना रोटेट्स अराउंड द आइडिया लाइक इन पोस्ट मॉडर्न मीडिया फॉर्म्स, और यू कैन से द न्यू मीडिया फॉर्म्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ट्रेडिशनल मीडिया फॉर्म्स, where you can say only the managers are the controllers, where you can say according to Marxists the owners are the controllers, according to pluralists managers are the controllers, but in the new media forms the audience are the controllers, because the new media forms rotates around the idea of prosumer. A prosumer is an individual who used to consume the media text and who used to produce the media text. So the content is totally under the control of audience, or you can say it's more about the idea of individualism, that individual have a right to consume, individual have a right to produce. Okay, so this is more about the new media practices. Okay, so if I'm just going to recap for one time, it's more about the idea like the pluralism, the managers are the controllers. For Marxists, the owners are the controllers. For Marxists, owners are the controllers. But if we talk about the new media forms, it's more about the audience. The prosumers are the real controllers. The people who used to produce the media text, like in Instagram, you used to produce one story and you used to consume 10 stories. Clear hogi baat? Any confusion to that?